today's topic is megaloblastic anemia, its causes, morphological features and clinical features. So to start with, what is megaloblastic anemia? So megaloblastic anemia is a kind of anemia, that means RBC synthesis has to be deficient, and it is the third type of anemia, that is anemia because of deficiency. So it is because of deficiency of vitamin B12 and folic acid that megaloblastic anemia takes place. एंड इन दिस डीएनए की जो मैच्योरेशन है या डीएनए का जो सिंथेसिस है वो इम्पेयर्ड होता है आरबीसी में और आरबीसी के प्रोजेनिटर्स में. एंड वी नो कि डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेल. नाउ लेट अस सी व्हाई इज इट कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया. तो मेगालोब्लास्ट जो वर्ड है, अगर हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वी विल गेट मेगालो, which means bigger in size, and blast. Blast is the term used for immature cells. Cyte is the word used for mature cells, and here blast is the term used for immature cells. And yes, यहाँ पे RBCs की जो immature RBCs होती है, they are bigger in size. This is the reason why it is known as megaloblastic anemia. And why are they bigger in size? Because of impaired DNA synthesis. DNA synthesis impaired होता है, इसीलिए जो erythroblast होते हैं वो bigger in size होते हैं as compared to their usual size. Now let us compare between the normal blood cells and the megaloblast. तो normal जो blood cells होते हैं they are shown on the left hand side of your screen, and जो मेगालोब्लास्ट सेल्स हैं दे आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन. तो जो नॉर्मोब्लास्ट होते हैं दे यूजुअली मेजर 7.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, एंड दीज सेल्स आर नोन एज नॉर्मोसिटिक. नॉर्मो मीन्स नॉर्मल, सिटिक मीन्स सेल. पर जो मेगालोब्लास्ट अनीमिया में आरबीसीज होते हैं या सेल्स होती हैं दे आर bigger in size as compared to usual size. That means they are bigger than 7.2 micrometer, and that is the reason why they are known as macrocyte. So we have got normal RBC as normocytic, which are 7.2 micrometer in diameter. Then we have got megaloblastic RBCs, which are macrocytic, bigger in size than 7.2 micrometer. माइक्रो मीन्स 10 to the power -6. नाउ जो नॉर्मल आरबीसीज होती है दे आर बाइकॉन्केव इन शेप बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बट जो मेगालोब्लास्टिक आरबीसीज होती है दे आर ओवल इन शेप क्योंकि उनमें न्यूक्लियस परसिस्ट करता है, बिकॉज उनमें डीएनए सिंथेसिस लैक करता है, इसीलिए उनमें न्यूक्लियस की मैच्योरेशन भी ढंग से नहीं हो पाती है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे आर ओवल इन शेप. So normal RBCs are biconcave in shape because of absence of nucleus in them, but megaloblastic RBCs are oval in shape because of presence of nucleus in them. Now let us see कि what happens if RBCs are macrocytic. क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि RBCs जो है वो macrocytic हो जाएगी, slightly larger हो जाएगी साइज में. So actually firstly let us see what is the cause behind it. So as we have seen कि जो megaloblastic anemia होता है it is because of deficiency of vitamin B12 and folic acid. And vitamin B12 and folic acid, as we have seen in the previous videos, causes impaired DNA synthesis. वो थाइमीन मोनोफॉस्फेट का सिंथेसिस इम्पेयर कर देता है. Now this leads to impaired hemopoiesis. अब DNA का सिंथेसिस ढंग से नहीं होगा तो ऑफकोर्स सी बात है ब्लड फॉर्मेशन ढंग से नहीं होगा. This ineffective hemopoiesis leads to the larger side of RBCs present in megaloblastic anemia. Now
ये जो लार्जर आरबीसीज प्रेजेंट होती है, दे कैरी ऑक्सीजन नॉर्मली बट दे हैव फ्लिम्सी मेम्ब्रेन and due to flimsy membrane they have shorter lifespan. Let's see the causes of megaloblastic anemia. So as it is deficiency anemia, it is caused due to deficiency of vitamin B12 or folic acid. Both of them causes megaloblastic anemia. And we have seen what is their role in synthesis of thiamine monophosphate in our previous videos, जिसका description box में डाल दूंगी. So you may see to it before looking at this video. Now either it is caused due to vitamin B12 deficiency or is it caused because of folic acid deficiency, because both of them are responsible for synthesis of DNA and specifically thiamine monophosphate, which is an important nucleotide of DNA, and we know that DNA is very important in any cell. Now let us see what are the various causes जिससे vitamin B12 deficiency हो गया, folic acid deficiency होगी, because these are the causes which indirectly causes megaloblastic anemia. तो deficiency किन causes में होती है? या तो आप कम intake लो, या जो खा रहे हो उसका absorption properly ना हो, या फिर आपकी requirement बढ़ जाए, right? चादर से बाहर पैर पसारते हैं, right? So that causes deficiency. So decreased intake can be because of inadequate diet. या तो आप vitamin B12 rich नहीं खाना खा रहे हो, या फिर आप complete diet पे हो कि आप खाना ही नहीं खा रहे हो, timely खाना नहीं खा रहे हो, which would cause deficiency. Of course, that is the reason why we are asked to take our food regularly, and that too variety of food products in our food, ताकि deficiency ना हो. The second cause can be impaired absorption. मतलब हम खा तो रहे हैं पर हमारी intestine उसे absorb कर नहीं रही है. And impaired absorption can be because of intrinsic causal factor deficiency, which we have seen in the previous videos that it is very important for absorption of vitamin B12. And vitamin B12 deficiency caused because of ICF deficiency is known as pernicious anemia. It has got a specific name. Now, other reasons for impaired absorption can be कि malabsorption syndrome, कि आपको खाना digest ही नहीं हो रहा, so you cannot absorb from it. और bacterial overgrowth हो गई आपकी intestine में, तो जो vitamin B12 आपका है, that bacterial overgrowth is utilizing your vitamin B12, इससे आपको deficiency होगी. या फिर कोई parasitic infection है आपकी intestine में, which is absorbing your vitamin B12 competitively. So competitive parasitic absorption also causes vitamin B12 deficiency. Now the third cause can be increased requirement. तो increased requirement usually females में होती है during pregnancy और during infancy. मतलब females में of course ही बात है, it would be increased requirement in pregnant females, क्योंकि almost हर चीज़ जो female को required है it doubles during pregnancy, because it is utilized for herself as well as the fetus which is growing in her womb. So pregnancy and infancy causes increased requirement, and that is the reason why supplements are given in pregnancy. Vitamin B12, iron, almost every supplement is given in pregnancy. Also during infancy. Now let us see what are the causes of folic acid deficiency. So just like vitamin B12, it is also of three types. Decreased intake because of inadequate diet. Youngsters eat a lot of junk food. Old people cannot chew food. Impaired absorption, it is basically because of drugs. Females take oral contraceptives. Patients who have convulsions, they take anticonvulsants. और किडनी फेलियर पेशेंट्स अंडरगो हीमोडायलिसिस. तो ये तीनों ही प्रोसीजर्स या ये तीनों ही ड्रग्स दे कॉज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. एंड देन अगेन इंक्रीज रिक्वायरमेंट इज इन प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स which are seen in megaloblastic anemia.
तो हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज विच वी कैन सी इन ब्लड फिल्म. जब हम एक ब्लड स्मेयर बनाते हैं, विच जो हम यूजुअली जाते हैं पीबीएफ का टेस्ट कराने फार्माकोलॉजिस्ट के पास या पैथोलॉजिस्ट के पास, तो वो यही देखता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ब्लड फिल्म. अदर इज बोन मैरो एग्जामिनेशन कि बोन मैरो की सेल्युलैरिटी कैसी है. वी सी बोन मैरो एग्जामिनेशन क्योंकि बोन मैरो is basically responsible for production of these cells. So we see two things: blood film findings, because you have to see shape of RBC, WBC and platelets and their size, and bone marrow findings, so to find the cellularity of bone marrow कि उसमें जो cells बन रहे हैं वो किस तरीके के बन रहे हैं. So let us start with blood film findings. अब blood film में हम क्या क्या देखेंगे? RBC, RBC के progenitors, platelets and WBC. So now we will start with RBC first. तो as I told you कि RBC क्या होगा? मैक्रोसिटिक होगा, 7.2 माइक्रोमीटर से बड़ी साइज का होगा. एंड सिंस RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बिकॉज न्यूक्लियर मैच्योरेशन हैजंट टेकन प्लेस, तो इसीलिए जो यूजुअल आरबीसीज में सेंट्रल पेलॉर प्रेजेंट होता है वो इन मैक्रोसिटिक ओवल आरबीसीज में एब्सेंट होगा. इसका मतलब ये टारगेट की तरह लगेंगी. एंड सो दीज आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज टारगेट सेल्स बिकॉज दे आर लैकिंग सेंट्रल पेलॉर. यूजुअल आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए उनमें सेंट्रल पेलॉर होता है, मतलब सेंटर से फेडेड कलर होता है. बट यहाँ पे सेंट्रल पेलॉर वुड बी लैकिंग एंड दीज विल बी नोन एज टारगेट सेल्स एंड दैट इज एविडेंट इन द डायग्राम एज वेल. यू कैन सी डायग्राम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड सेंट्रल पेलॉर इज एब्सेंट. नाउ सेकेंड इज आरबीसी प्रोजेनिटर. सो जस्ट लाइक आरबीसी, आरबीसी के प्रोजेनिटर्स जो हैं वो भी बड़े होंगे साइज में. दे विल बी मेगालोब्लास्टिक. मेगा बड़ा, ब्लास्टिक मतलब आरबीसी प्रोजेनिटर्स. इन आरबीसी प्रोजेनिटर्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. फर्स्टली आरबीसी प्रोजेनिटर्स की कुछ स्टेजेस हैं, वी शुड गो थ्रू दैट एंड देन वी विल सी कि हर स्टेज में कैसा डेवलपमेंट होता है. तो आरबीसी प्रोजेनिटर की पहली स्टेज है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, सेकेंड इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड देन लेट नॉर्मोब्लास्ट, then reticulocyte and then erythrocyte or mature RBC. So these all RBC progenitors are megaloblast, बड़ा होते हैं, बड़े साइज में. इन सभी में न्यूक्लियर मैच्योरेशन लैक करता है क्योंकि डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होता. एंड दिस इज बिकॉज जो डीएनए सिंथेसिस है उसमें थाइमीन नहीं हो रहा, थाइमीन मोनोफॉस्फेट नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी. एंड ये न्यूक्लियर मैच्योरेशन इतना कम होता है दैट इट लैक्स साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन. जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मैच्योरेशन एंड साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन गोज हैंड इन हैंड, बट हियर इट लैक्स. एंड न्यूक्लियर मैच्योरेशन लैक इसलिए करता है क्योंकि जो लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज होती है यूजुअली उसमें पिक्नोसिस हो जाता है न्यूक्लियस का, मतलब न्यूक्लियस टूट जाता है ताकि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस ना रहे. बट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में पिक्नोसिस नहीं हो पाता, इसलिए वो जो न्यूक्लियस है वो टूट नहीं पाता. और दिस इज द रीजन है कि जो मैच्योर आरबीसीज बनती हैं उनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई दैट द मैक्रोसाइट्स आर ओवल इन शेप. एंड न्यूक्लियस इज सीन ऑलमोस्ट इन एवरी आरबीसी प्रोजेनिटर. वही लेट नॉर्मोसाइट और रेटिकुलोसाइट में जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, बट यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ऑल्सो न्यूक्लियस और डीएनए लैक ऑफ मैच्योरेशन के कारण जो रेटिकुलोसाइटोसिस होता है वो डिक्रीज होता है. दिस इज अ फीचर, रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीजेस. नाउ लेट अस कम टू WBCs. So WBCs are white blood cells. And WBCs में भी specifically we are concerned about neutrophils which are known as polymorphonuclear lymphocytes.
न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे साइज में बड़ी होती है, जस्ट लाइक आरबीसी, दैट मीन्स मैक्रो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। नाउ न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलरेडी मल्टी लोब्ड होता है, 2 to 6 लोब्ड होता है न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस। बट यहाँ पे इन केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें 6 लोब से भी ज़्यादा लोब्स बन जाते हैं न्यूट्रोफिल्स में, दैट मीन्स द न्यूक्लियस इज हाइपर सेगमेंटेड। ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रोफिल में वैसे तो मल्टी लोब भी होता है न्यूक्लियस, 2 to 6 लोब्ड, पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हाइपर सेगमेंटेड हो जाता है, दैट मीन्स more than 6 lobes are present in nucleus of neutrophils, particularly neutrophils. Now a diagram will be shown on your screen which will be showing hypersegmented nucleus in neutrophils. Now let's talk about platelets. So platelets के जो प्रोजेनिटर होते हैं उन्हें मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट लाइक WBC एंड RBC जो मेगा कैरियोसाइट है वो भी बड़े होते हैं, दे आर ऑल्सो मैक्रो, सो मैक्रो मेगा कैरियोसाइट आर प्रेजेंट। ऑल्सो यूजुअली प्लेटलेट्स का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज बाइलोब्ड और न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्लेटलेट्स, बट यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो हाइपर लोब्यूलेटेड होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसमें भी कई सारे सेगमेंट्स बन जाते हैं। सो वी कैन सी कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उसमें साइज में प्रॉब्लम आ रहा है सब सेल्स में और न्यूक्लियस में भी प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए था वहाँ भी है और जहाँ है वहाँ हाइपर सेगमेंटेड है, इफ यू सी इट एज अ जनरलाइजेशन। Our second morphological feature is bone marrow finding. इसका मतलब bone marrow की हम टेस्टिंग करेंगे तो what will we find? So bone marrow finding में हम देखेंगे कि compensatory erythropoiesis हो रहा है। इसका मतलब हमारा अनीमिया है तो हमारे पास RBC की डेफिशिएंसी है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की खुद से कोशिश करेगी, एंड दिस इज द रीजन वाई कि वो कॉम्पनसेटरी इरेथ्रोपोइसिस करेगी और कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेसिया करेगी, मतलब बोन मैरो के सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। हाइपरप्लेसिया मीन्स इंक्रीज इन नंबर, बट स्टिल इट वुड रिजल्ट इन टू पैनसाइटोपिनिया, मतलब डिक्रीज इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। आरबीसी भी डिक्रीज हो जाएंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, WBCs भी और प्लेटलेट्स भी, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट DNA सिंथेसिस। ऑल्सो बोन मैरो इतनी ज़्यादा कोशिश करेगा कि वो सेल्स प्रोड्यूस करे कि हाइपर सेल्यूलैरिटी हो जाएगी, पर वो जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो काम के नहीं होंगे बिकॉज दे हैव डेफिशिएंट DNA सिंथेसिस, एंड ये हाइपर सेल्यूलैरिटी एक्चुअली क्राउडिंग हो जाएगी बोन मैरो की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, share and subscribe if you found it knowledgeable.